يا من صليت الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی وعدہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ میں اب تمام کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے استقبال رمضان۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دن بعد انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ رمضان کا نام سنتے ہی ہم سب کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے نا۔ رمضان میرے اور آپ کے زندگی میں آ تو رہا ہے، لیکن کیا وہ مقصد لے کے آ رہا ہے جس مقصد کے لیے رمضان میرے اور آپ کی زندگی میں جو دیا جا رہا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے نا۔ اگر آج ہمارے طرف صرف بازاروں پہ اگر نظر ڈالیے تو وہاں ہر کسی کی زبان پر یہ بات موجود ہے کہ اب سیزن کا مہینہ آنے والا ہے، ٹھیک نا۔ تو اسی لیے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے یعنی رجب سے پہلے ہی لوگ اپنے دکانوں کا سامان لاتے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ خاص چیز کا تیاری ہو رہی ہے۔ ہر کسی کو اگر کسی کو دیکھیے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اب ایک مہینہ آنے والا ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ان کا زیادہ کاروبار ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، تو فائدہ ان کو اٹھانا وقت سے پہلے پوری پلاننگ کر کے رکھتے ہیں، تو ہر کوئی اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ ماحول اور معاشرے کو دیکھیں تو عید کی تیاری نظر آتی ہے، ٹھیک نا، جبکہ اصل تیاری رمضان کی ہے۔ میرے اس الفاظ کو اچھے سے غور سے سنیے گا۔ مکمل تیاریاں ہو رہی ہے عید کی خاص دن کے لیے، اور اصل تیاری تھی رمضان کی، ٹھیک نا۔ عید کی تیاری، عید کس کے لیے ہے؟ اچھا کھانے والے، اچھا کپڑا پہننے والے، اچھی مکمل ڈریسنگ کر کے گھر کو سجانے والے، کیا اس کے لیے عید ہے؟ یہ مہینہ صرف عید کے لیے مہینہ نہیں دی گیا ہم لوگ کو، یہ رمضان کا مہینہ، استقبال رمضان میرا ٹاپک ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ پہلے ہمارے ماحول اور معاشرے کا تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مقصد جو تھا وہ مقصد تو پورا ہٹ گیا، اور جو مقصد ہونا چاہیے وہ ہمارے ذہن و گمان میں نہیں ہے۔ ہاں، روزے ہم لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کا مقصد بھی ہم نے بھلا دیا۔ تیاری اصل پوری لگی ہوئی ہے عید کے دن کے لیے۔ بازار میں شاپنگ ہو رہی ہے عید کے لیے، گھروں کے پورے تمام کے تمام چیزیں خواتین خریدتی ہیں، یا خاص طور پر ڈریسنگ ہو یا کوئی اور چیز ہو، یا کوئی اور چیز بھی، کوئی اور تیاری بھی ہو، وہ خاص نظر آتی ہے عید کے لیے۔ تو عید کس کے لیے ہے؟ بہت بڑا سوال ہے نا۔ عید اس کے لیے ہے کہ وہ رمضان سے پہلے جو مکمل فائدہ اٹھا لیا۔ عید اس کے لیے ہے جو رمضان کا نعمتیں اور برکتیں، مغفرتوں کو اپنے جھولی میں بھر لیا۔ عید صرف کھانے اور پینے والوں کے لیے نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن کے اور اچھے جوتے پہن کے یہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ عید تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہ دی گئی ہے مجھ کو اور آپ کو۔ یہ نہیں کہ ایک مہینہ رمضان آ رہا ہے تو ہم ایک مہینہ کے نمازی بن جائیں، ایک مہینہ کے ہم لوگ مسافر بن جائیں، ایک مہینہ کے لیے روزہ رکھے۔ ہے ایسے بہت ہے ہمارے ماحول و معاشرے میں، ایک مہینہ کے لیے سارا چیز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سب چیز غائب، تقوی وقوہ غائب، نماز غائب، سارا چیز غائب۔ ایک اشعار ہے، نمازیوں کا سیلاب آ رہا ہے، نمازیوں کا سیلاب آ رہا ہے، سنا ہے ماہ رمضان آنے والا ہے، پتہ چلا ہے ایک ماہ کا مسلمان آ رہا ہے، ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ عرض کیا ہے نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے ماہ رمضان آنے والا ہے۔ مسجد کا دائرہ تھوڑا بڑا کر لیجئے،
माह का मुसलमान आने वाला है। आज यही हाल है आज हमारे हैं, हमारे मुसलमानों का। रमज़ान का महीना पूरा जो दिया गया असल तकवे के लिए दिया गया। दोनों ईदें आपके मेरी ज़िंदगी में आती है, चाहे वो ईद उल अज़हा हो या ईद उल फित्र हो। ये दोनों ईदों का असल मकसद क्या है? तकवा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान के महीने में जो ख़ास इबादत मुझ पर और आप पर, हम सब पर, तमाम मुसलमानों पर, जितने लोग इस दुनिया में हैं और जितने लोगों ने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया, अब हर बालिग पर रोज़े, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। ख़ास रोज़े, ख़ास इबादत रमज़ान में की जा रही है। तो इस रमज़ान का जो रोज़े दिए जा रहे हैं उसका मकसद क्या है? ईद का मकसद भी तकवा है, चाहे वो ईद उल अज़हा हो या ईद उल फित्र हो। ये रोज़े का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में अल्लाह क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगो जो अल्लाह पे ईमान लाए, कुतवा अलैकुम वो सियाम, मैं तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, तुम पर ये बोझ नहीं डाला गया। तुम अपने आप को इतना मस्त बड़ा समझो कि तुमको रोज़े ये दिए। नहीं नहीं नहीं, तुमसे पहले वाले लोगों को भी ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। मकसद क्या है? रोज़े तत्तकुम, तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ, अपने अंदर तकवा पैदा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करें, अपने हक में मग़फ़िरत करवा के जाइए। ये बहुत बड़ा असूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मौके मेरे और आपकी ज़िंदगी में बार बार ला रहे हैं। तो अल्लाह चाहते हैं कि बंदा अपने मौत से पहले अपने अल्लाह को राज़ी कर ले। ये महीना कोई आम महीना नहीं है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में आने वाला। अल्लाह, आप लोग गौर करिए, हम लोग कितने इसकी बरकतों के बारे में, इसकी मग़फ़िरत के बारे में हम लोग ने सुना है। तो अल्लाह ने इस महीने को ख़ास बनाए, मेरे और आपके लिए ख़ास बनाए हैं। ख़ास उसूल रमज़ान में अप्लाई होते हैं आसमानी दुनिया पर, ज़मीन पर, ठीक ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कई हदीस में हम लोगों ने सुना, जब रमज़ान आता है, जब रमज़ान की जो शुरू हो जाती है, जैसे रमज़ान का महीना लग जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। ये कौन सा महीना? यही रमज़ान का महीना में ख़ास महीना, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। ख़ास महीना जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। ख़ास महीना जो जीन होते, जो शैतान होते, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जकड़ देते हैं, ताकि हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो बंदे हैं वो अच्छे से अल्लाह को राज़ी करने वाले, भरपूर फ़ायदा उठाने वाले बन जाए। अल्लाह ख़ास इंतज़ाम कर रहे हैं ना। लेकिन क्या हमारी वैसी ख़ास तैयारी हो रही है अल्लाह की राज़ी करने के लिए? हो रही है? हाँ बोलिए, खास तैयारी हो रही है। रमज़ान का इस्तकबाल करने की किससे करते हैं? रमज़ान आ रहा है, कपड़े धो दो, रमज़ान आ रहा है, बिस्तर धो दो, रमज़ान आ रहा है, घरों को साफ कर दो, रमज़ान आ रहा है, घरों में पूरा राशन डाल दो। खाने पीने के अलावा, रहने सोने के अलावा कोई और तैयारी होती है हम लोग की? रमज़ान की कोई खास तैयारी? अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रमज़ान के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाते थे, खुद रमज़ान के लिए तैयारी करते थे, अपने अहलो अयाल के लिए तैयार करते, अपनी बीवी को याद दिलाते रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला है। तो वो कैसे तैयारी क्या करते? वो क्या तैयारी क्या करते? सहाबा कराम को बार बार याद दिलाते थे। मेरे और आपके सहाबा 6 महीने पहले से अल्लाह से दुआएं करते, या अल्लाह तू हमको रमज़ान में दाखिल कर दे, रमज़ान से फ़ायदा उठाने वाले बना दे। आज हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको सेहत और सलामती के साथ मुकम्मल रमज़ान से फ़ायदा उठाने वाले बना दे, आमीन। ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र हम सब के हक़ में कर दे। तो रमज़ान मेरे और आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ख़ास महीना अल्लाह ने ख़ास ये बनाया ना, है ना। तो ये ख़ास महीने मेरे और आपके लिए कुछ ख़ास है उसमें करने का ना, कुछ हमने प्लानिंग की है ना। एक अगर दुकान वाला कोई दुकान चलाता है, जब उसके सीज़न का महीना आता है तो वो प्लानिंग करता है, कौन सा माल है, कौन सा माल बिक रहा है, कौन सा माल नहीं बिक रहा है, उसको क्या करना है, उसको कहाँ काम को कैसे आगे बढ़ाना, लोग कौन सा खरीद रहे हैं, कौन सा लोग नहीं खरीद रहे हैं। हम अपने घर का मामला ले लीजिए ना, आप रमज़ान जो आ रहा है तो उसकी खास तैयारी हमारे राशन की जो होती है, क्या है घर में या नहीं है घर में, ये सब देख के हम लोग वक्त से पहले मंगा लेते हैं ना, है ना।
تو کیا ایسے ہی وقت سے پہلے رمضان کے میں اور آپ تیاری کر لیتے ہیں جو کر لینا چاہیے؟ بہت بڑا سوال ہے یہ. استقبال رمضان مطلب رمضان کی تیاری. آپ مجھے بتائیے، آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے، سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ کیا تقویٰ آتا ہے؟ کیا اللہ یاد آتے ہیں؟ کیا قرآن سے جڑنا یاد آتا ہے؟ کیا نماز کی کثرت یاد آتی ہے؟ یا گھر کے کام زیادہ یاد آتے ہیں؟ گھر کی چیزیں زیادہ یاد آتی ہے نا، گھر کی گھریلو چیزیں اکثر یاد آتی ہے زیادہ، ہے نا. استقبال رمضان کا مقصد یہ ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ گھر میں صاف کریں، یہ نہیں ہے. پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. ہم کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا ہے. سال کے 12 مہینے ہم کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا ہے اور ہمارے ساتھ استعمال ہونے والی چیز ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا ہے. اپنے وقت کو اللہ کے لیے ضائع مت کریے، ان چیزوں کے پیچھے مت لگیے. مجھ کو اور آپ کو لگانا ہے ان چیزوں کے پیچھے لگیے. اپنے آپ کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر تیاری کیجیے رمضان کے لیے، جیسے کہ صحابہ اکرام کیا کرتے، جیسے صحابیات کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے رمضان کے خاص عبادت جو رکھے ہیں نا، روزہ ہے نا، روزہ مجھ کو اور آپ کو رکھنا ہے. تو روزوں کے تعلق سے وہ مسائل کو جاننا ہمارے لیے لازم ہے نا، کہ روزہ کب ٹوٹتا ہے، روزہ کیسے حال میں ہم کو مکمل کرنا ہے، اگر ہمارے کوئی سنجیدہ ہو جائے تو تب کیا کرنا ہے، روزے کی نیت کیا ہے، افطار کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ٹائمنگ اس کو کیسے فالو کرنا ہے. یہ سب چیز جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کے تعلق سے مکمل علم ہونا ہمارے لیے لازم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا فرض ہے نا، گھر میں امی بھی رکھ رہے ہیں، بابا بھی رکھ رہے ہیں، بھائی بھی رکھ رہے ہیں، بہن بھی رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، ہے نا. لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ روزے کی نیت ہی نہیں ہم لوگ کرتے ہیں. ایک تو نیت بھی نہیں ہوتی ہے اور دوسرا بھی افطار کا طریقہ بھی پورا غلط ہوتا ہے. اور وہ جو روزہ ہوتا ہے اس کے اندر پورے گناہ ہوتے ہیں، آنکھ کے گناہ ہوتے ہیں، کانوں کے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ ہوتے ہیں، پیروں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، ہے نا. اصل جو مقصد ہے تقویٰ وہ تو پورا غائب ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار پسند نہیں ہے جو صرف کھانا کھائے، نہ پانی پیے، صرف اپنے جسم کو بھوکا پیاسا رکھے. نہیں، روزہ رکھنا ہے تو آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پورے جسم کا روزہ ہے. خاص عبادت ہے یہ، کوئی عام عبادت نہیں ہے یہ. اور ہر بالغ پر یہ فرض ہے، ہر بالغ پر فرض ہے. اکثر روزے کے تعلق سے ہمارے پاس ماحول و معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ گھر کی خواتین روزوں کی پابند ہوتی ہیں، لیکن گھر کے مرد حضرات پورے کے پورے ان کی زندگی سے روزے غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سیزن کا مہینہ ہے. اسی لیے دھوپ بہت زیادہ ہے، گرمی کے مہینہ ہے، تو روزے نہیں رکھتے ہیں وہ. اللہ اکبر. افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان رمضان کہ ایک ایسا کھلا آفر اس کو دیا جا رہا ہے آخرت کو کمانے کا، اور اللہ کا دیا ہوا موقع کو انسان پیروں سے رونتے ہوئے دنیا کو قبول کرتا. کتنی بڑی بیوقوفی ہے. آپ خود اپنا جائزہ لیجئے. اللہ ایک مغفرتوں کا مہینہ میرا اور آپ کا مہینہ ہے، ریڈی میڈ لا کے نوالا رکھ رہے ہیں اللہ پاک، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس سیزن چلا گیا، اگر ہم نے اچھے کمائی نہیں کی تو اگلے سال کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سوچتے ہیں نا. رزق کون دیتا؟ اللہ رب العالمین نا. یہ آنے والا کسٹمر دیتا ہے، اللہ رب العالمین دیتے ہیں نا. تو رمضان کا خاص عبادت یہ فرض ہے. فرض مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ لازم ہے یہ چیز کرنا. ہم سمجھتے ہیں صرف عورتوں پر روزے فرض ہے، نہیں، مرد پہ بھی روزے فرض ہے. گھر کے مرد حضرات کے ہی روزے چھوڑ دیتے ہیں اور خواتین پہ اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اثر تو دور کی بات ہے، یہ جو دوپہر کے وقت سالن گرم کر کے دیتی ہے. ایک مومنہ عورت کے شوہر کہ کیا بھی بے روزے دار رہ سکتی ہے؟ ایک مہینہ دکان بند رہے گی، پرواہ نہیں ہے. اللہ رزق دینے، اللہ کی ذات ہے رزق دینے، بغیر محنت کیے بھی دے گا، وہ بے شک دیں گے. استقبال ہم کو کرنا ہے رمضان کا، تو ابھی سے ذہنی طور پر پورے گھر کو تیار کریے. رمضان آ رہا ہے، خاص عبادت ہے اس کے اندر ہے، تو ہم کو پورے گھروں کو، پورے ہر والد پر یہ فرض ہے. ہماری جو صحابیات ہے، اللہ اکبر،
अपने छोटे जो बच्चे होते हैं ना, दूध पिलाने वाले बच्चे, उनके जो उन बच्चे को दूध नहीं पिलाते थे इस बच्चे से कि मेरे बच्चे को रोजे की आदत पड़े, दूध पिलाने वाले बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी। सोचिए आप, घर के मर्द हजरात, उनको वो कई लोगों को मालूम ही नहीं है कफारा कब अदा करना है, किसको अदा करना है, कितना अदा करना है, हम नहीं जानते, है ना। हम मुसलमान हैं, इल्म के दरिया से हम लोग ज्यादा दिन तक दूर नहीं हो सकते, वरना जहालत मेरे और आपके अंदर आ जाएगी। जहां इल्म नहीं होता वहां जहालत होती है, और जहां जहालत में इंसान क्या अमल करेगा क्या ना करे उसको कोई परवाह नहीं होती है। रमजान आ रहा है तो एक खास चेन मेरे और आपके अंदर आना चाहिए, खास आपके मेरे अंदर प्लानिंग आना चाहिए। सहाबा पूरा माहौल बदल जाया करता था, एक रूहानी माहौल नजर आया करता था। हमारे पास वो नहीं नजर आता ना। हाँ, सहर के वक्त लगता है कि रमजान आया है, और इफ्तार के वक्त आया है कि लगता है कि रमजान आया है, उसके अलावा नहीं लगता ना। अगर वाकई आप रमजान का इस्तकबाल करना चाहती हैं तो पहली चीज अल्लाह के लिए पहला काम ये करिए कि अपनी अकीदे तौहीद को दुरुस्त करिए। अगर हम अल्लाह को नहीं जानते तो रोजा रख के भी हम फायदा नहीं उठा सकते। ये रोजा तो अल्लाह के लिए ना, रोजा अल्लाह के लिए रखा जाता है ना। जब तक अपने बंदा जुबान से नहीं बोलेगा तब तक मालूम होगा कि वो रोजे से है, नहीं होगा ना। और इसका अजर भी खास है ना, गौर करिए। सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि रोजा मेरे लिए है और मैं उसका अजर दूंगा, है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है कि रोजे का कर्ज अल्लाह कितना देगा। रोजे के हालात में झूठ भी बोल रहे हैं, मामलात भी धोखाधड़ी चल रही है, वही रिश्तेदारी वैसी ही है, ताल्लुकात भी वैसे ही हैं, रवैये पूरे हराम है। तो क्या रोजों को कुछ असर हुआ हमारी जिंदगी में? कई रमजान हमारे मेरी जिंदगी में आए चले गए, हमारे और आपकी जिंदगी में पूरे रमजान आके फायदा फिर क्या हुआ? बताइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको इस दुनिया में पैदा किया, वमा खलक़तु जिन्ना, हमको अल्लाह की इबादत करनी है। लेकिन इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रमजान आए तो हम रोजा रख लें, जैसे रोजा दिल चाहे वैसे तराबी पढ़ लें, क़यामुल लैल कर लें, कुरान का अगर को खुलासा कुरान तो ज्वाइन कर ले, उसका खत्म। इबादत का मकसद ये नहीं है। इबादत का मकसद इबादत आपके घर में भी करनी है, आपके ज़ुबान से भी करनी है, आपके मामलात में करनी है, आपके रिश्तेदारियों में करनी है, आपके ताल्लुकात में करती है, अपने रवैये में करना। जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मानी जाएगी वहां पे अल्लाह की आप इबादत करेंगे। हम नमाज पढ़ते हैं ना, अल्लाह के लिए पढ़े ना, इबादत के लिए खास है। तो क्या मामलात समझते हैं? मामलात इबादत है, रिश्तेदारी इबादत है, रवैये इबादत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को देखना, मुस्कुरा के क्या देखा? सदका है ना, सदका इबादत है ना, है ना, है ना, ये नहीं है तो फिर तो आप गौर करिए, यहाँ पे रवैया है ना, ये सिर्फ मुस्बित रवैया है ना, ये एक अच्छी सोच है ना, ये भी इबादत है। नहीं, मामलात में अगर अल्लाह याद नहीं है, कारोबार में अल्लाह याद नहीं है, ताल्लुकात में अल्लाह याद नहीं है, रिश्तेदारी में अल्लाह पाक याद नहीं है, तो जुबान खोलते वक्त अल्लाह याद नहीं है, तो ये रमज़ान का मेरी और आपकी ज़िंदगी में आना, रोज़ों का रखना, ये इबादत करना फिर हमारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं देगा, कोई फ़ायदा नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि वाकई रमज़ान अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपके हक में अल्लाह को राज़ी करने वाले रमज़ान बन जाए, तो सबसे पहली चीज़ हमको अकीदे तौहीद को देखना होगा। अकीदे तौहीद जब तक दुरुस्त नहीं होगा तब तक कोई अमल हमारा कोई कबूल नहीं होगा। अकीदे तौहीद कैसे मालूम होगा? अल्लाह कौन है? अल्लाह मेरी मर्जी से जानती हूँ, या मैं अल्लाह के नज़दीक जिसे बताए उसे जानती हूँ? अल्लाह को अल्लाह के शान के मुताबिक जानती हूँ या अपने खुद के इल्म के मुताबिक जानती हूँ? अल्लाह की तारीफ मैं और आप नहीं कर सकते। अल्लाह के हमद, उसके सना हम लोग नहीं जान सकते। अल्लाह ने जैसे मुझको और आपको अल्लाह के बारे में बताया वैसे ही मुझको और आपको जानना है। वो कैसे जानेंगे हम? इस कुरान से ना। लेकिन कुरान का मामला क्या है? रमज़ान आए तो रोज़ा आए, रोज़े आए, और नहीं आए तो हाथ में कुरान आ जाता है रमज़ान में।
صرف رمضان میں 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن، 5 قرآن یا 10 دن کا یا 5 دن کا سبینہ، یہ سب 15 دن کا سبینہ کر لینے سے ہم قرآن سے عقیدے توحید کو نہیں سیکھ سکتے. ماحول معاشرے میں ریس لگی رہتی ہے نا. ہمارے بہو 3 قرآن پڑھے ہیں، ہمارے بڑی بہو 4 قرآن پڑھی. یہ رمضان میں ختم قرآن، ہر قرآن کو ختم کرے ہے نا. اتنی بڑی قرآن ختم ہوئی، اتنی بڑی قرآن ختم کیے، وہ رمضان میں ختم ہو جاتی. 11 مہینے بھی کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، قرآن کو اس کو کوئی چھوتا نہیں ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے. یہ مہینہ کون سا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے. اس کے خاص فضیلت ہے نا، جو روزے سے ہے، قرآن سے ہے نا. اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے بندے کو جب بندہ قرآن سے جڑتا ہے. اور دیکھیے نا، اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے بندوں کو پاک کرنے کے لیے، جو دشمن میرے اور آپ کے بیچ لگا ہوا ہے، اللہ کے رضا کے لیے مجھ کو اور آپ کو روک سکتا، اس کو بھی اللہ پاک نے جکڑ دیا. اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ نے اتنا زبردست آفر دیے ہیں جس کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس میں بھی ہم قرآن پڑھتے تو کیسے؟ وہ طریقے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے نہیں بتائے ہیں. آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آتا تو 10 آیت پڑھتے. کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں پڑھتے. ان کو پڑھتے، ان کو سمجھتے، ان پہ عمل کرتے، اور اس کے بعد دوسری آیتوں کو پڑھتے. ہمارے پاس ایک دن 1 پارہ ہے نا، ایک دن میں 2 پارے، 5 پارے ہے نا، لیکن اس کی سمجھ بالکل نہیں ہے. تو کیسے معلوم ہوگا کہ عقیدے توحید ہے؟ اللہ کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائے، اللہ میرے اور آپ کے روزوں کو قبول کر لے، میرے اور آپ کے نماز کو قبول کر لے، تو عقیدے توحید کو سمجھیے. جہاں عقیدے توحید نہیں ہوتا وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے، جان لیجیے. اور جہاں شرک ہوتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ قرآن میں خود اس کے قرآن میں گواہی دیے ہیں. اللہ قرآن میں جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ پاک قرآن میں کہے ہیں شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک ہم قرآن کو کھول کے پتہ نہیں چلے، اس کا معنی نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ ورنہ نہیں معلوم ہوگا ہم لوگ کو. تو رمضان کا استقبال کرنے کے لیے تو اللہ کے لیے تیار ہو جائیے کہ یہ رمضان میں یہ مجھ کو اور آپ کو قرآن پڑھنا ہے. تو کتنا قرآن پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. اس کے تعلق سے میرے پاس کتنی کتابیں موجود ہے، میرے پاس کچھ ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یا کچھ میں نے پلاننگ کیا اس کو سمجھنے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا 1 قرآن مکمل کریے، ضروری نہیں ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ 1 پارہ پڑھیں، لیکن اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں. ایک ہر مہینے پڑھیے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک اس قرآن میں کہہ کیا رہے ہیں. اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ہدایت کی کتاب بنائی نا، تو ہدایت میں اسے لوں گی کیسے؟ تو میں نے کی طرح پڑھ کر اس کا حق کیا ہے مجھے کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ صرف رٹا مار لینے سے، حفظ کر لینے سے کیا قرآن کا حفظ کرنے سے کیا قرآن کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں. رمضان کا حق پورا ادا ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ کے لیے رمضان خاص عبادت ہے. مومن تڑپ کے ساتھ انتظار کرتا ہے کہ اللہ کب یہ دن ختم ہو، کب یہ رمضان کا دن شروع ہو جائے. مومن تڑپ جاتا ہے، روتا ہے. اور رمضان شروع ہوتے ہمارا جوش آسمان پر، اور پھر رمضان ختم ہونے پر پھر زمین پہ نہیں ہونا چاہیے. وہ جوش، وہ محبت، وہ اخلاص، وہ تمام کے تمام اعمال جو رمضان سے پہلے وہ تیار کیے تھے، وہ پورا مکمل ہونا چاہیے. خاص طور پر روزوں کے تعلق سے مکمل مسئلے، تمام کے تمام اس کے مسائل کو جانیے. قرآن کے تعلق سے میں اس بار آخری 1 پارہ پڑھوں گی، لیکن جتنی میں سورے پڑھوں گی اس کو میں جانوں گی. نمازوں میں تراویح میں پڑھ رہی ہوں، میں قیام اللیل کر رہی ہوں، اس کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے نا. خاص طور پہ قرآن کا ایک ماحول نظر آتا ہے رمضان میں نا، ہے نا. تو مسجد میں یا کہیں قیام اللیل گھروں میں ہوتا ہے، لوگ قرآن دین میں پڑھتے بیٹھ رہے ہیں. گھروں میں جہاں جائے وہاں کوئی نہ کوئی قرآن پڑھتا ہوا ضرور نظر آتا ہے. یہی ماحول ہمیشہ کنٹینیو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صرف رمضان میں خاص طور پہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں صرف رمضان میں؟ صرف رمضان کے لوگ مسلمان ہیں؟ رمضان مطلب قرآن صرف رمضان کے لیے اتارا گیا نہیں نا. اچھی عبادت ہے، آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اس پہ عمل کریے. تو آپ کے لیے عمل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے پاس.
आसानी से आप अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहली चीज क्या है? अकीदे तौहीद, कुरान। जब तक हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तब तक अकीदे तौहीद हमको मालूम नहीं होगा। शिर्क क्या है? अल्लाह के लिए उसको पढ़िए, शिर्क से अपने आप को पाक कीजिए, वरना हमारे सदका, हमारे खैरात, हमारे नमाज, हमारे जकात, हमारे उम्रा, हमारा हज सारा बेकार हो जाएगा। रमजान आ रहा है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये दोनों चीज का खास तौर पे ख्याल रखिए और अपने रवैयों को अल्लाह के लिए ठीक करिए। दिल से गंदगी जो है वो किसी के लिए तो किसी के लिए साफ कर दीजिए। दिलों में गंदगी रखकर अगर रोजा का इस्तकबाल करिएगा तो याद रखिए हमारे अमाल कबूल नहीं होंगे। मैं और आप सावन के महीने में हैं, इंशाअल्लाह अन करीब रमजान में दाखिल होने वाले हैं। ये सावन का वो महीना जिसके बाद मेरे और आपके अमाल, नामे अमाल पेश किए जाते हैं पूरे एक साल की, ईयरली साल के। तो क्या ये दिलों की गंदगी रखकर हमारे नामे अमाल पेश करेंगे सामने? नहीं ना। एक नई चीज आ रही है, एक नई शुरुआत मुझको और आपको करनी है, एक रूहानी ताकत मुझको और आपको इंशाअल्लाह मिलने वाली है। तो वो ताकत कुरान से हासिल करिए, कुरान को पढ़िए, सीखिए, समझिए और जितना इल्म हो सके आपका आता है तो आप लोगों तक पहुंचाइए। ये काम आपको करना होगा। अकीदे तौहीद, मैं क्या बोलूं ये अहम नहीं है, अल्लाह की किताब क्या बोलूं ये सबसे बड़ी अहम चीज है। मेरी कब्र में आप नहीं आओगे, आपके कब्र में मैं नहीं आऊंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास क़यामत के पास जब आपका हिसाब होगा, हिसाब किताब देंगे तो मैं उसके अंदर आके गवाही नहीं देने वाली हूँ। जब मेरा हिसाब किताब होगा तब तक आप उसका गवाही देने वाले हैं। तो अल्लाह के लिए आप अपना घर, अपने रिश्तेदार, उन सब को तरजीह देने से पहले आप अपने आप को पहले तरजीह दीजिए अकीदे तौहीद के लिए। मुझे मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह कौन है। ये हम सबको ये मालूम, हर कोई जानता है कि सबका रब कौन है, सबका मालिक कौन है। अगर आप एक चलते हुए रेलवे स्टेशन पे पूछेंगे, बस स्टेशन पे, स्कूल में पूछे, कॉलेज पूछे, कुछ भी पूछे, कहीं भी किसी गैर मुसलमान से पूछे तुम्हारा मालिक कौन है, तो वो क्या बोल देगा? अल्लाह है, ऊपर वाला है, बोलेगा ना। अल्लाह मालिक है, अल्लाह रब है, ये तो बात हर कोई जानता है। लेकिन अल्लाह को मानना असल नहीं है, अल्लाह को बोलना असल है, अल्लाह को मानना असल है। अल्लाह को मान लिए, लेकिन अल्लाह की माने या नहीं माने ये कब मालूम होगा? जब आप जहां अल्लाह को तरजीह देंगे ना, वहां आपने अल्लाह की मानी और अल्लाह आप माने। आपको बात में आएगी आपको समझ में? आप अपनी जिंदगी में एक हिस्से में अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह ही करने वाले हैं ना, लेकिन मामलात में अल्लाह की नहीं मानते हैं। तो अल्लाह को आप रब नहीं माने। अगर मामलात में आप अल्लाह को नहीं माने तो आप अल्लाह को रब नहीं माने। तो जो भी कर रहे हैं प्योरिटी अल्लाह को देंगे, तब आएगी आपके पास अकीदे तौहीद, पहला काम। दूसरा काम आपको करना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जाना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुझको और आपको पढ़ना है, रिसालत उनको जानना है, ताकि मेरे और आपके अमाल है वो अमाल पे कबूल होने के लिए गवाही लगे। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि दुनिया में मेरे जो अमाल मैंने किए हैं वो अमाल का कल क़यामत के दिन एक काले कपड़े में लपेट के मेरे मुंह पे मार दिए जाए। कोई नहीं ये चाहता। ये ना मेरी बहनों, अपने दिलों पे हाथ रख के देखिए कि कहिए रमजान आ रहा है ना, हम अपने लिए खास तौर पर एक आध ड्रेस तो जरूर खरीदेंगे, है ना, एक आध चप्पल तो जरूर खरीदते हैं ना। सिर्फ एक चप्पल की मिसाल ले लीजिए, ठीक ना। एक चप्पल खरीदने के लिए 20 दुकान जाते हैं ना, हम 20 दुकान जाते हैं, 1 से 20 दुकानें जाते हैं, 1 से 20 चप्पल देखते हैं हम लोग अलग अलग, है ना, और ऊपर नीचे पलटा के देखते हैं, नया नया मॉडल क्या आया कि यही सब देखते हैं ना। समझ में ना आए तो जिसकी पसंद अच्छी है उसको साथ लेकर जाते हैं, और बड़ी तहकीक के बाद, बड़े घूमने और फिरने के बाद, बड़ी छानबीन के बाद एक चप्पल खरीदते हैं, राइट, है ना। एक जूता खरीदते हैं, एक जोड़ी हम खरीदते हैं पैर में पहनने के लिए, जो कुछ दिनों के बाद पहनते हैं, धूल लग जाती है, गंदगी लग जाती है, और फिर एक चप्पल के लिए हम इतनी उसको तरजीह देते हैं, इतनी तरजीह देते हैं कि उसको ढूंढ के लेते हैं। हम जो अमल कर रहे हैं अल्लाह के लिए, उसका अमाल के आपने कभी इतना तरजीह दी जितनी एक चप्पल खरीदने के लिए देते हैं तरजीह? हाँ, क्योंकि अमाल की कबूलियत बहुत अहम है, बहुत अहम है। हर अमाल कबूल होने वाला नहीं है,
वही अमल कबूल होने वाला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। रमज़ान में हम बहुत सारे अमाल करेंगे, लेकिन क्या वो उन अमाल का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही होगी, मोहर होगा? हाँ, ये बहुत अहम चीज़ है। अल्लाह के लिए इसको खास समझिए, इसको अकीदे तौहीद को दुरुस्त करिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानने की कोशिश कीजिए। ये रमज़ान आ रहा है ना, सीरत की अच्छी किताब लीजिए, 1 से 4 लोगों के पूछिए क्या ये सीरत की अच्छी किताब कौन है, कहाँ मिलेगी, कितने में मिलेगी, हमको चाहिए, हमारे अपना एड्रेस बताइए, अपने मंगवाइए, पढ़िए उसको। कुरान के साथ साथ सीरत का भी मुताला कीजिए, सुन्नत कौन सा करना है आपको, रोजे के हाल में आपको क्या अमाल करना है तो ज़्यादा अजर मिलेगा, तो अल्लाह को राज़ी करने का कौन सा अमल बेहतर है, अल्लाह का कर्ब हासिल करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने का। क्योंकि अल्लाह एक मर्तबा मुझसे और आपसे खुश हो गए ना, तो मुझे और आपकी कामयाबी तो पक्की हो गई। अल्लाह ये मौका क्यों देते मुझको और आपको, रमज़ान का मौका क्यों दे रहे मुझको और आपको? अल्लाह को राज़ी करने के लिए ना, अपनी जन्नत को हासिल करने के लिए ना। ख़ास जो इबादतें पूरी अल्लाह के लिए हो रही ना, हुकूकुल्लाह हुकूकुल लिवाद है ना, अपने आखिरत को बेहतर बनाने के लिए। अब इंसान बना बनाया में पूरा माहौल दे दिया जाए, उसके बावजूद भी वो अपने अकीदे को तरजीह ना दे, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में इंसान में क्या कौन होगा? नहीं होगा। इंसान बना बनाया हुआ माहौल पूरा दे दिया जाता है, फिर उसके बाद भी अपने अकीदे को तरजीह ना दे, तो मुझे बताइए उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा दुनिया में? नहीं होगा। याद रखिए, अल्लाह हर किसी को मौका नहीं देते हैं। अल्लाह राजी करने के लिए बार बार हर किसी को मौका नहीं देते हैं। पिछले साल बहुत सारे लोग जिंदा थे, इस साल वो लोग जिंदा नहीं हैं। आइंदा आने वाले साल हम में से बहुत सारे लोग अब जिंदा हैं। आने वाले सालों के बाद कितने लोग जिंदा होंगे या नहीं होंगे हम नहीं जानते, है ना। अल्लाह एक अच्छा मौका दे रहे हैं, हर मौके को आखिरी मौका समझकर, हर रमज़ान को आखिरी दिन समझकर अल्लाह के लिए उसको तरजीह कर लीजिए, उसको थोड़ी सी उसके पीछे मेहनत कर लीजिए। देखिए, बंदे को अगर कोई बता दे कि ये आखिरी दिन है तो क्या करता है, वो थोड़ी ज्यादा मेहनत करता है ना। अगर किसी को बोला जाए आपकी जिंदगी के आखिरी 10 दिन बचे हैं, तो क्या करेगा? दुनिया को तरजीह देगा? हाँ बोलिए, खाने और पीने और घूमने की तरफ जाएगा? नहीं ना, वो क्या करेगा? दुनिया थोड़ी काम कर देगा, दुनिया रखेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, मरेगा, वो काम करेगा, लेकिन तरजीह किसको देगा? अल्लाह को। दुनिया को देगा? अल्लाह आखिरत को देगा। अल्लाह के लिए इस रमज़ान को आखिरत को तरजीह दीजिए। ये 1 महीना आ रहा है, मुझको और आपको आने वाली पूरी जिंदगी पूरी करना क्या है, अल्लाह को राजी कैसे करना है, क्या अमाल करना है, अपनी जन्नत को बनाना है तो कैसे बनाना है, उसके लिए ये रमज़ान दिया जा रहा है। अल्लाह के लिए उसकी कदर कर लीजिए। और रमज़ान ये खास है, रमज़ान में ये 5 अल्लाह पाक ने 5 इज्जतें, 5 सरफराज खास मोमिनों को अल्लाह पाक अदा करते हैं। 5 इज्जतें को खास कौन सी है? पहली तो जब रोजेदार रोजा रखता है तो उसकी मुंह से जो बदबू आती है, मुंह की जो बदबू किसी को नहीं पसंद है ना, फितरी तौर पर इंसान की मुंह की किसी इंसान की बदबू पसंद नहीं आती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन को इतनी इज्जत दी है रोजे के हालात में कि अल्लाह को वो मुंह बदबू कस्तूरी से ज्यादा पसंद है। अल्लाह को पसंद है वो बदबू। अल्लाहू अकबर। दूसरी इज्जत, दूसरी सरफराजी जो रब्बुल आलमीन जो दिए हैं रमज़ान में मोमिन बंदे को दिए हैं, वो अता करते हैं, रोजेदारों को अता करते हैं, वो ये है कि जो बंदा सही हदीस के मुताबिक 5 चीज़ों को मैं बता रही हूँ कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो उसको सहर से लेके अफ्तार तक समुंदर की तमाम मछलियाँ उसके लिए मगफिरत के लिए दुआ करती है, रोज़ेदार के लिए तो अफ्तार तक दुआ करती हैं। अल्लाहू अकबर। आज तक समुंदर की मछलियों को कोई गिन सकता है? कोई साइंटिस्ट को इसके पीछे लग भी जाए ना, पूरी जिंदगी कट जाएगी, लेकिन समुद्र की मछलियों को गिन नहीं सकती, क्योंकि वो एक दिन करोड़ों मछलियां पैदा होती है, ठीक ना। तो वो मछलियां दुआएं करती हैं उन रोज़ेदारों के हक में, उनकी मगफिरत के कब से, सहर से लेके अफ्तार तक। अल्लाहू अकबर। ठीक है। तीसरी इज्जत दी जाती है जो अल्लाह पाक देते हैं रोज़ेदारों को, रमज़ान को मोमिनों को दी जाती है, वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रोज़
जन्नत को आरास्ता कर देते हैं, जन्नत को उनके नए सिरे से स्टार्ट कराते हैं। हर दिन नई तैयारी उनके लिए रमजान में होती है, जन्नत को खास तौर पर। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है नहीं ये। हमारे लिए रमजान जन्नत को तैयार किया जाता है, हर दिन नए सिरे से एक नए तरीके से उसको आरास्ता किया जाता है, ठीक है, रोजेदारों के लिए। चौथी चीज ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे को अल्लाह से जोड़ने के लिए बीच में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए अल्लाह पाक क्या करते हैं, तमाम सर्कस शयातीन को जकड़ लेते हैं। ये अल्लाह ताला की इज्जत नहीं है जो अल्लाह हम लोग को अता कर रहे हैं? बहुत बड़ी सरफराजी है ये, बहुत बड़ी सरफराजी कि मैं अपने रब से ताल्लुक जोड़ने में मुझे कोई रुकावट ना हो, ताकि बंदा बहाना ना बनाए। खुला शैतान भटका रहा था ना, इसलिए तो शैतान को अल्लाह पाक कैद कर लिए, इसलिए रोजे नहीं रखती, झूठ बोल दिए, गीबत कर दिए, थोड़ा धोखा दे दी, है ना। रमजान आता है लेकिन बंदा फिर भी झूठ बोलता है, फिर भी चोरी करता है, फिर भी धोखाधड़ी करता है, क्योंकि शैतान भी नहीं होता ना। फिर क्यों करता है बताइए जरा। 11 महीने जो वो अमल कर करके जिस काम का वो आदी हो जाता है, अब वो काम इतना हद से आगे जब बढ़ जाता है तो शैतान उसके साथ रहे या ना रहे, वो अपना काम जारी रखता है, समझे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदा गुनाह पे गुनाह, बुराइयों पे बुराइयां, बेहाई पे बेहाई जब ये करता चला जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर क्या करते हैं, सूरह बकरा में शुरुआत में रुकू में क्या कर, याद रखिए, अगर रमजान आने के बाद भी गुनाह नहीं छूटे, उसकी मैं तर्जुमा कर रही हूँ, वो झूठ वैसे ही है। रमजान कभी पढ़ रहे कभी छोड़ रहे हैं, रोजा है इसलिए पढ़ ले रहे हैं, लेकिन रोजा नहीं है तो खत्म। आज अगर किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से रोजा छूट गया, लेकिन रमजान फर्ज है, नमाज पढ़ सकते, लेकिन रमजान नमाज भी छूटे, तो याद रखिए, तो फिर वो आयत कभी हमारे हक में वो कभी शायद ना, अल्लाह पाक हम लोग के हिफाज खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, अल्लाह उनके दिलों में मोहर लगा देंगे, उनको कोई असर, रमजान आए उनकी जिंदगी में चला जाए, लैलतुल कद्र आए चला जाए, मस्जिदों से अजान बुलंद हो या कुरान की आवाज आए, उनके दिलों पे कोई असर नहीं होगा। हमारे माहौल माशरे में ऐसे भी हैं, रमजान आता है लेकिन उनकी जिंदगी में कोई असर नहीं होता है, और बाज ऐसे हैं कि आता है थोड़ा असर लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी असर ईद के करीब, कोई असर ईद के करीब नहीं रहता है। देखे हमने ऐसा को। अब आज ऐसे हैं कि जब रमजान आता है उसमें डूब जाते हैं और फिर उसके बाद कभी उनके नशा उनके सर से नहीं उतरता है। अल्लाह की इबादत करने का, अल्लाह का राजी करने को उनको जो मौके दिए जाते हैं, उनके तलाश में रहते हैं, उनसे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो तीसरी मतलब चौथी इज्जत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, चौथी सरफराज ये है कि अल्लाह बंदे को अमल करने के लिए इतनी आसान कर देते हैं कि सर्कस शयातीन को अल्लाह जकड़ लेते हैं, ताकि बंदा जल्द से जल्द अल्लाह को राजी कर ले, अपने जन्नत अपने हक में पक्की कर ले। पांचवी चीज ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान का आखिरी रात हो जाए तो बंदे को जहन्नम की आज़ादी का उसके परवाना उसके हाथ में थमा दिया जाता है। सहाबा इकराम पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लैलतुल कद्र है या रमजान की आखिरी रात है? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसके आखिरी में दी जाती है, ना कि उसके दरमियान में दी जाती है, यानी आखिरी रात में दी जाती है। तो आखिरी रात में हमारा होता क्या मामला? अल्लाहु अकबर, पूरी ईद की तैयारी होती है ना। कोई अल्लाह से माफी, कोई मगफिरत करने का कोई मामला नहीं होता ना, है ना। तो अल्लाह के लिए ये चीजों को अपने जहन में रखिए। एक खास महीना एक खास शेड्यूल के साथ आ रहा है, खास माहौल के बना के मुझको और आपको दे रहे हैं। मुझको और आप बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह बना कर दे रहे हैं। फायदा मुझको और सिर्फ उठाना, आपको मुझको सिर्फ थोड़ी सी हरकत करनी है, अल्लाह खुद आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तो इस तकवाले रमज़ान के लिए अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। अपने बेहतर रमज़ान कैसे बनाना है, बेस्ट रमज़ान कैसे बनाना है, उसके लिए हम सब 2023 मतलब यानी 2023 रमज़ान को हमारा बेस्ट रमज़ान कैसे बनाए, कौन सा अमाल करें रमज़ान के ताल्लुक से मुकम्मल। يا من صليت